everyone, my name is Avinash Kumar Yadav and I welcome all of you to the official channel of Law Prep Tutorials. Today we will try to get to know about Transgender Persons Act 2026 and we will also try to explore as to why are LGBTQIA plus activists protesting against this law. We will also try to understand the criticisms of this law and the constitutional challenges around it. So basically, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो around, as you can see on the screen, that around 140 lawyers and feminists and LGBTQIA plus activists basically wrote to the president, and they basically requested her to not grant the assent to the bill, which has already been passed by both the houses of the parliament. And they basically highlighted many constitutional violations and constitutional challenges which the protesters are saying that have been expressly ignored. So now let us try to understand the historical background and what is there in this act and the criticisms around it. So basically, talking about pre-2014 era, there was no express provision or any special law that was dedicated to trans persons in India, and only there was a constitutional guarantee or constitutional provisions that were available in constitution, like article 14, which basically gives everyone the right to equality before law, right? Or article 15, which says that there shall be no discrimination on ground of sex. There are other grounds, but specifically we are concerned with this at the moment. Then article 19 is freedom of expression, because one's gender identity is also a form of their expression. And article 21, that is right to life, liberty and dignity. But 2014 से पहले कोई भी explicit recognition जो है gender identity को नहीं था, and transgender persons legally they remained invisible, basically meaning that there was no protection or there was no law regarding them. Then in 2014 came the landmark judgment of Nalsa versus Union of India. This was very instrumental regarding trans rights in India. And in this judgment, basically, the Supreme Court recognized that trans people should be recognized as third gender. They should be given the recognition of being the third gender. And यहाँ पे Supreme Court ने क्या किया? Right to self-identify gender भी दिया. Basically, people got the right to determine as to which gender they conform to. And the court also held that one's gender identity is psychological, right? And it is not biological, basically not based on one's body, but it is basically psychologically based. Okay. अब इसने क्या किया? इसने आर्टिकल 14 को क्या किया? एक्सपैंड किया as to including applying to all persons, इवन ट्रांस पर्सन्स. आर्टिकल 15 को यहां पे क्या इन्होंने एक्सपैंड करा? आर्टिकल 15 जो कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. सो आर्टिकल 15 में सेक्स की मीनिंग को भी एक्सपैंड किया गया, विच नाउ इंक्लूड्स जेंडर आइडेंटिटी एज वेल, राइट? नालसा केस ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया कि मेडिकल या सर्जिकल टेस्ट करने की जरूरत है लोगों के जेंडर को डिटरमिन करने के लिए, और ये इंडिया में ट्रांसजेंडर राइट्स का फाउंडेशन भी बन करके आता है, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014. इसके आगे के अगर हम लोग बात करें तो वी हैव केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इवन दो दिस जजमेंट इज प्राइमरीली रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी इन इंडिया, बट नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एज टू हाउ प्राइवेसी इज कनेक्टेड टू दिस डिस्कोर्स, राइट? अब 2017 केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज करा कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, और वो पार्ट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है. हमें यहां पे ये भी बात बताई गई दैट प्राइवेसी बेसिकली इंक्लूड्स डिसीजनल ऑटोनॉमी एंड बॉडीली इंटेग्रिटी, राइट? कहने का मतलब प्राइवेसी में ये बताया गया कि प्राइवेसी का मतलब है कि आप अपने बॉडी से रिगार्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं, एंड यू विल ऑल्सो हैव द राइट टू बॉडीली इंटेग्रिटी एट द सेम टाइम. अब यहां पे इसका इंपैक्ट जो आकर के पड़ता है कि ट्रांसजेंडर राइट्स पे भी पड़ता है. वो कैसे? कि जो जेंडर आइडेंटिटी है वो क्या बन गई है? प्राइवेट पर्सनल चॉइस बन गई, क्योंकि डिसीजनल ऑटोनॉमी है यहां पे, राइट? और यहां पे ये स्टेट के अननेसेसरी इंटरफेरेंस से भी बाहर है, राइट? बिकॉज हमने क्या सीखा यहां पे? दैट राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? एंड right to life and personal liberty cannot be
interfered with even by state through arbitrary mechanism. तो इसलिए ये केस भी हमारे इस डिस्कोर्स से रिलेटेड है. Then comes Navtej Singh Johar judgment in 2018, and let us try to understand how is this relevant. Because prior to 2018, Section 377 of IPC used to criminalize. Section 377 जो है IPC का, वो रिकॉग्नाइज करता था, क्रिमिनलाइज करता था any sexual intercourse between people belonging to same sex, right? The title of Section 377 IPC used to be unnatural sex. This Navtej Singh Johar judgment basically decriminalized same-sex relationship between consenting adults, right? और यहां पे ये बात भी बताई गई कि डिग्निटी और आइडेंटिटी जो है वो क्या है, कोर राइट्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो मोरालिटी है, राइट, आर्टिकल्स जो हमने पढ़े वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सोसाइटी की जो मोरालिटी है. ठीक है, इस केस में LGBTQIA प्लस राइट्स के बारे में के डिस्कोर्स को स्ट्रेंथन किया इंडिया में, और इन्होंने फ्रीडम जो आर्टिकल 19 के अंदर है अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने की, उसको भी स्ट्रेंथन किया. इसके बाद आता है ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट ऑफ 2019, जो बेसिकली नालसा केस के ऊपर बेस था. नालसा के अंदर जो भी प्रिंसिपल बताए गए, तो ये क्या था, सबसे पहला लीगल रिकॉग्निशन या फिर एक स्टैट्यूट बनाया गया, लॉ बनाया गया ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर. और यहां पे जो ट्रांसजेंडर्स की जो डेफिनेशन बताई गई वो काफी ब्रॉड और इंक्लूसिव थी. और यहां पे इस लॉ के अंदर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन अलाउड है. बेसिकली नो पर्सन वाज एक्सपेक्टेड टू गो थ्रू अ मेडिकल टेस्ट टू प्रूव दैट दे बिलोंग टू ट्रांसजेंडर कैटेगरी, राइट. सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का मतलब है सेल्फ डिक्लेयरिंग समवन्स आइडेंटिटी. और यहां पे ट्रांसजेंडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजंस बनाए गए, राइट. तो अब बट ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट 2019 वाज आल्सो नॉट अ वेरी कंप्लीट पीस ऑफ लॉ इन इटसेल्फ, क्योंकि इसके जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है और जो पनिशमेंट वगैरह इसके अंदर ग्रांटेड है वो भी इसका एक वीक एरिया हुआ करता है. आगे अगर हम चलते हैं 2000 अमेंडमेंट एक्ट 2026 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो कि करंटली हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, तो यहां पे जो ट्रांसजेंडर पर्संस की जो डेफिनेशन है उसको क्या किया गया है, जो नैरो डेफिनेशन इस बार अडॉप्ट किया गया है. पहले मैंने आपको क्या बताया, 2019 लॉ में काफी ब्रॉड डेफिनेशन बताई गई थी और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन भी अलाउ किया गया था. 2026 लॉ क्या कर रहा है, ट्रांसजेंडर पर्संस की डेफिनेशन को काफी नैरो कर रहा है. और यहां ट्रांसजेंडर पर्संस को मैंडेटरी किया गया है कि उनको मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी. दे विल हैव टू गेट देमसेल्व्स असेस्ड बाय अ मेडिकल बोर्ड, एंड देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल हैव द पावर टू ग्रांट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द सेम. ये लॉ एक चीज के मामले में अभी ये भी जो है कंटेस्टेड पॉइंट है, ये व्यू पॉइंट है, बट यहां पे जो एक्सप्लॉइटेशन को लेकर के जो प्रोविजंस बनाए गए हैं वो इसका एक स्ट्रेंथ माना जा रहा है. तो अगर मेजरली अगर आप देखें इस पूरे डिस्कोर्स में, तो एक मेजर शिफ्ट हुआ है. पहले सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की तरफ था लॉ, अब क्या है, स्टेट कंट्रोल्ड रिकॉग्निशन है. मतलब अब स्टेट के पास ये पावर होगा वेदर टू गिव समवन द सर्टिफिकेट और नॉट. Now, let us in detail try to understand what this law basically is. बैकग्राउंड यहां कहां से निकल करके आता है. अगर हम नालसा जजमेंट के बारे में बात करें तो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ने क्या किया, ट्रांसजेंडर पर्संस को एक थर्ड जेंडर की तरह रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने बोला कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर. और इसी चीज को बेसिस बना करके ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 आता है, जिसने सेल्फ डिक्लेरेशन, कोई मेडिकल एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के थ्रू सर्टिफिकेट आपको ग्रांट किया जा सकता था. यहां पे डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटिंग भी प्रोविजंस बनाए गए, बट इसके इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म इतने स्ट्रांग नहीं थे. दिस इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म्स. अब एम क्या है 2026 अमेंडमेंट का, इन्होंने द एम है कि ये स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं आइडेंटिटी रिकॉग्निशन को एज टू हु ऑल कैन बी क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसजेंडर्स. मिसयूज या फिर एक्सप्लॉइटेशन जो इस प्रोविजन के, इसके बारे में भी एड्रेस करना चाहते हैं, और जो क्रिमिनल पेनल्टीज हैं उनको भी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं.
तो नालसा डिस्कोर्स या फिर 2019 एक्ट के बारे में बात करें तो वो राइट्स बेस्ड था, देयर वर सर्टेन राइट्स दैट वर गिवन टू पीपल. However, now through this law, the government is trying to regulate things. So that is why we can say that earlier things were right based and now things are based on regulatory framework. Right? पहले जो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन थी वो काफी ब्रॉड और इंक्लूसिव थी, जिसके अंदर ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, इंटरसेक्स, जेंडर क्वियर, हिजराज एटसेट्रा, all these were included. And it was majorly on the basis of self-perceived identity. If someone believes that they belong to any of these listed categories, they can self-declare it and get the certificate obtained. 2026 में जो one of the biggest criticisms है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ 3 categories of persons को include किया गया है. One is socio-cultural groups, right? Historical significance जिनका है. These are communities like Hijras, Kinnars, etc. Medically recognized intersex persons, and there is also third category, anyone who has been subjected to any form of exploitation such as castration etc., even they are recognized as transgenders. The problem here being that people who are self identifying themselves कि वो इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं, उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है. तो पहले साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी से लेकर के अब शिफ्ट कहा हुआ है बायोलॉजिकल या सोशल क्लासिफिकेशन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, विच इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ रिग्रेसिव मूव. ये एक रिग्रेसिव मूव है. नाउ अब अगर हम रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी के बारे में बात करें तो 2019 में किस तरीके से कोई पर्सन अपने आप को एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन डिक्लेयर कर सकते थे, वो एक सिंपल एफिडेविट बना करके सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू सर्टिफिकेट को इशू करवा सकते थे. अब प्रोसीजर क्या है कि मैंडेटरी मेडिकल प्रोसीजर से गो थ्रू करना पड़ेगा, फिर सर्टिफिकेशन के लिए मेडिकल बोर्ड क्या करेगा, रिव्यू करेगा रिपोर्ट को और फाइनल अप्रूवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलेगा. नाउ इससे भी ज्यादा ये कि इफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नॉट सेटिस्फाइड, राइट, वो एडिशनली फिर से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं या एडिशनली वो फिर से मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन या फिर एक सेपरेट मेडिकल टेस्ट को कंडक्ट करवा सकते हैं. अब ये क्या हो रही है, इससे इंडिविजुअल्स की ऑटोनॉमी और डिग्निटी को इफेक्ट हो रहा है. और ये नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के प्रिंसिपल को बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये उसके कॉन्सेप्ट के भी अगेंस्ट है. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल क्या है यहां पे पूरा अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसे केसेस में फाइनल अथॉरिटी है सर्टिफिकेट ग्रांट करने के लिए. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द एडवाइस रेंडर्ड बाय द मेडिकल बोर्ड. एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन ऑल्सो सीक एडिशनल ओपिनियंस, एडिशनल मेडिकल ओपिनियन भी मांग सकता है अगर वो क्लियर नहीं है इस चीज को लेकर के. तो अब इस पे कोई भी क्लियर गाइडलाइंस नहीं दी गई है, सो दिस बिकम्स प्रोन टू मिसयूज. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स. अब आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करें, विच इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ आर्बिट्रेरी डिसीजंस, नॉन रीजन्ड डिसीजंस, नॉन रैशनल डिसीजंस. तो सिर्फ कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया है यहां पे, कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, तो आर्बिट्रेरी डिसीजंस के चांसेस बढ़ जाते हैं और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल जो है वो क्या हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है, ज्यादा हो रहा है. प्रोविजंस लॉ के अंदर ऐसे भी बनाए गए हैं जो अलाउ करते हैं फर्स्ट नेम चेंज करने के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, राइट. एंड इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड that in case if anyone goes through sex change surgeries, then hospital को mandatorily क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा अथॉरिटी को. Again, this is intrusion of privacy since every person shall have the right as to what to disclose and what to not regarding their body. और ये स्टेट सर्विलांस को भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. Once positive that is coming out of it, दैट यहां पे काफी स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज इंपोज करी गई हैं अगर कोई किसी का फोर्सफुली जेंडर आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश करता है. चिल्ड्रन को या लोगों को ट्रैफिक करना, खरीदना बेचना फॉर द पर्पज ऑफ चेंजिंग देयर जेंडर, फोर्स कास्ट्रेशन या फिर अब्यूज, तो इससे रिलेटिंग यहां पे काफी स्ट्रिंजेंट या सीरियस प्रोविजंस बनाए गए हैं. एंड हियर द पनिशमेंट इज starting from 10 years to life imprisonment. This is one of the areas which is being positively considered because ये एक पॉजिटिव स्टेप है प्रोटेक्शन की तरफ जो कि लिया जा रहा है.
अब कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज क्या है इसको हम लोग समझते हैं। आर्टिकल 14, नाउ जब ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन या सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी को इंक्लूड नहीं कर रहा है तो ये यहां पे क्या कर रहे हैं, ये इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है और इस तरीके का एक्सक्लूजन जो है वो आर्बिट्ररी है और आर्टिकल 14 के अगेंस्ट। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। सेक्स ऑल्सो इंक्लूड्स जेंडर आइडेंटिटी और सिंस सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी को इग्नोर किया गया है, दैट बेसिकली मींस दैट दिस इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ आर्टिकल 15। आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए विच टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। सो यहां पे राइट टू एक्सप्रेस समवन्स जेंडर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस राइट, तो उसको भी यहां पे क्या किया गया, वायलेट किया गया है। आर्टिकल 21 के अंदर हम लोगों ने देखा ही किस तरीके से डिग्निटी, ऑटोनॉमी और प्राइवेसी से रिलेटेड राइट्स को वायलेट किया गया। प्लस देयर आर टू वेरी मेजर जजमेंट्स, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। These two judgments have been violated as well. करंट स्टेटस क्या है इस लॉ का, इसको लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया 13 मार्च 2026 को, 24 मार्च 2026 को ये लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में 25 मार्च 2026 से ये पास हो गया और प्रेसिडेंशियल असेंट जो है इसको 30 मार्च 2025 एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट दे हैव आल्सो गॉटन द प्रेसिडेंशियल असेंट। तो कोर क्रिटिसिज्म इसका क्या निकल करके आता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज दैट दिस वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। नालसा जिस सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के राइट के बारे में बात करता है उसके अगेंस्ट है ये कंप्लीटली, और इसलिए ये इंडिविजुअल्स की ऑटोनॉमी और डिग्निटी को वायलेट करता है। यहां जो डेफिनेशन है ट्रांसजेंडर्स की वो काफी रिस्ट्रिक्टिव है या फिर काफी नैरो डेफिनेशन है। 2019 के लॉ के अंदर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन अलाउ किया गया था, इसलिए काफी ब्रॉड और इंक्लूसिव डेफिनेशन को रखा गया था। 2026 बिल के अंदर ओनली 3 कैटेगरीज ऑफ पर्संस, फर्स्ट ट्रांस पर्संस विथ सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी, सेकेंड अगर मान लो हम लोग यहां पे बात करते हैं तो इट विल बी रिलेटिंग टू पीपल हु हैव बीन फोर्सफुली कास्ट्रेटेड, थर्ड वन इज बायोलॉजिकली रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स। एक्सक्लूड करता है सेल्फ परसेप्शन या फिर सेल्फ आइडेंटिटी को, विच इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ आर्टिकल 14। नाउ अगर जो आइडेंटिटी है, इफ वंस जेंडर आइडेंटिटी उसका मेडिकलाइजेशन किया गया है, विच बेसिकली मीन्स दैट इन केस समवन वांट्स टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, then they will have to undergo through a medical procedure and they will have to obtain a certificate from the district magistrate, which violates their right to bodily autonomy and right to integrity under article 21. केएस पुट्टास्वामी जजमेंट ऑल्सो मैंडेट्स कि प्राइवेसी के अंदर पर्सनल आइडेंटिटी के चॉइसेस इंक्लूड है राइट टू डिसाइड, राइट टू डिसीजन रिगार्डिंग वंस ओन बॉडी और वंस ओन आइडेंटिटी। सिंस इस लॉ के अंदर मेडिकल प्रोसीजर, रिपोर्टिंग, अगर ऐसा कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ये सारे के सारे राइट्स, ये जो प्रोविजंस हैं ये राइट्स को वायलेट करते हैं ऑफ पीपल, एंड द राइट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज राइट टू प्राइवेसी। रोल, अगर हम स्टेट के रोल के बारे में बात करें तो वो बहुत एक्सेसिव हो गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐसे पावर्स दिए गए हैं जिनमें कोई क्लियर गाइडलाइंस भी नहीं है, जिससे ये पोटेंशियल मिसयूज को की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 19(1)(a) ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन जेंडर आइडेंटिटी, विच इज बीइंग वायलेटेड हियर बिकॉज सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी इज नॉट इंक्लूडेड हियर। अब यहां पे एक और समझ में आ रहा है कि अगर हम बात करें बहुत सारे ट्रांसजेंडर पर्संस को वो मेडिकल क्राइटेरिया जो नहीं मीट कर पा रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा मार्जिनलाइजेशन या एक्सक्लूजन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उन प्रोसीजर्स के थ्रू भी नहीं गो थ्रू कर पाएंगे ड्यू टू फाइनेंशियल कॉस्ट या फिर सोशल स्टिग्मा या सोशल रीजंस। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर पर्संस हैं जो इस डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करेंगे, जिनको बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे एंड दे विल बी सोशली एक्सक्लूडेड, राइट। प्लस अगर हम यहां पे बात करें तो ब्यूरोक्रेटिक और प्रैक्टिकल इश्यूज के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। नाउ लेट अस जस्ट क्विकली सी कि क्या कंपैरिजन है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं थ्रू दिस टेबल। दिस टेबल बेसिकली गिव्स अस 3 to 5 important topics which are very important for all the law students to understand.
नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ, अगर हम फोकस के बारे में बात करें, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर है, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का प्राइवेसी के ऊपर है, नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिग्निटी एंड आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा है। ट्रांस पर्सन्स एक्ट 2019 का जो है वो लीगल प्रोटेक्शन ग्रांट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। 2026 में हम रेगुलेशन की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी। नालसा ने क्या करा, कोर प्रिंसिपल यह है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यहां पे अलाउ किया जाएगा। पुट्टास्वामी केस ने ऑटोनॉमी की तरफ ज्यादा फोकस किया, इंडिविजुअल्स राइट टू डिसाइड। नवतेज सिंह जौहर केस में अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने को एक राइट बताया गया। डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रिंसिपल्स यहां पे ऐड किए गए ट्रांस एक्ट 2019 में। ये स्टेट कंट्रोल की तरफ हम बढ़ रहे हैं 2026 के बारे में अगर हम बात करें तो, ड्यू टू एक्सेसिव पावर्स बीइंग गिवन टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर रिकॉग्नाइज होना है एक पर्सन को एज अ ट्रांसजेंडर, देख यहां सेल्फ डिक्लेयर्ड रिकॉग्निशन के बारे में बात हुई। केएस पुट्टास्वामी जजमेंट ने यह कहा कि यह पर्सनल चॉइस है एक पर्सन को अपनी जेंडर आइडेंटिटी को डिसाइड करना। राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन जेंडर आइडेंटिटी इज अ राइट दैट इज अ प्रोटेक्टेड राइट। ट्रांसजेंडर पर्सन में सेल्फ डिक्लेरेशन पे फोकस किया गया। यहां पे मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन प्लस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अप्रूवल कंपलसरी है। स्टेट रोल मिनिमल है यहां इन केसेस में, लिमिटेड है, प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव यहां फैसिलिटेटिव है, फैसिलिटेट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहां पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल स्टेट का आ जाता है क्योंकि जो मैकेनिज्म्स बनाए गए। अप्रोच क्या है, राइट्स बेस्ड है, सर्टेन राइट्स दिए नालसा ने। केएस पुट्टास्वामी भी सर्टेन राइट्स दे रहा है, नवतेज सिंह जौहर में भी सर्टेन राइट्स दिए गए। यहां पे भी सर्टेन राइट बेस्ड है 2019 बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन नालसा प्रिंसिपल्स। ये रिस्ट्रिक्टिव है अप्रोच में बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है सर्टेन पर्संस को दैट दे कैन नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ट्रांस पर्संस। शिफ्ट के बारे में अगर हम देखें तो ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट 2019 नालसा के प्रिंसिपल्स पे चल रहा है और यहां रिवर्स कर दिया है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के प्रिंसिपल को, राइट। So I will just quickly move aside so that you can also take a screenshot in case if you want to make a comparative analysis of this topic, right? With this we are done with this topic, a very important topic. Thank you so much everyone for watching this video. In case if you guys want me to come up with more such videos, please let me know in the comment box. Thank you so much.